નમસ્કાર, એબીસી ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું ભૂમિકા। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર કરી લઈશું આજની મુખ્ય હેડલાઇન્સ પર। હેડલાઇન્સના પ્રાયોજક છે માનસી ઓટો। ત્યાં મળશે દરેક કંપનીની ગાડીઓ, તો આજે જ ખરીદો અને માણો તમારા ઉત્સાહનો આનંદ। આજથી કોરોના રસીકરણનો ત્રીજો તબક્કો શરૂ। 45 વર્ષથી વધારે ઉંમરના તમામ લઈ શકશે રસી। સુરતી લાલાઓને 2 ગણો આનંદ મેળવવાનો મોકો। હજીરાથી દીવ વચ્ચે ક્રૂઝની શરૂઆત કરવામાં આવી। સુરતના વિપ્રોદ વિસ્તારમાં આવેલ સેન્ટ્રલ મોલમાં 17 કેસ કોરોના પોઝિટિવ આવતા મોલને બંધ કરાયો। સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાં વર્ગ 4ના કર્મચારીઓ અચાનક હડતાલ પર ઉતર્યા। માગ સંતોષાતા 2 કલાકે હડતાલ સમેટાઈ। તો જોઈએ સમાચારો વિસ્તારથી। ગુજરાતમાં આજે સૌપ્રથમવાર બનાસકાંઠામાં પાલનપુરથી મંડાર સુધી રેલવે ટ્રેક પર ડબલ ડેકર ગુડ્સ ટ્રેનનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે। છેલ્લા 10 વર્ષથી ચાલી રહેલા ડેડિકેટેડ ફ્રન્ટ કોરિડોર રેલવે ટ્રેક પર આજે સફળ પરીક્ષણ કર્યા બાદ 350 કિલોમીટરનો રેલવે ટ્રેક માલગાડીઓ માટે ખુલ્લો મુકાયો છે, જેથી હવે અત્યાધુનિક બનેલા રેલવે ટ્રેક પર માલગાડીઓ દોડતા સમયની સાથે સાથે ખર્ચની પણ બચત થશે। વિકાસ કરી રહેલા ગુજરાતની યશ કલગીમાં આજે વધુ એક મોર પીછું ઉમેર્યું છે, જેમાં ગુજરાતના સૌપ્રથમવાર ડેડિકેટેડ ફ્રન્ટ કોરિડોર રેલવે ટ્રેકનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે। બનાસકાંઠામાં ન્યૂ પાલનપુર અને અજમેરના મંડાર સુધીના 335 કિલોમીટર રેલવે ટ્રેકનું સફળ પરીક્ષણ કરાયું છે અને ડીએફસીસી ન્યૂ રેવાડીથી દાદરી વચ્ચેનો 642 કિલોમીટર ટ્રેક આવતા માર્ચ 2022 સુધીમાં પૂર્ણ થવાની શક્યતા છે। આજે પાલનપુર ખાતે શુભારંભ કરાયેલ અને રેલવે ટ્રેક પર 75 થી 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડી શકાશે, જેનાથી વેપારીઓ ઝડપથી પોતાનો સામાન મળી શકશે। ડીએફસીસી ટ્રેક પર 2 સ્ટેશનો વચ્ચેનું અંતર 40 કિલોમીટરનું છે, જ્યાં સાદી માલવાહક ટ્રેનના સ્ટોપેજનો અંતર 5 થી 7 કિલોમીટર આવે છે। સમગ્ર ડીએફસીસી રૂટ સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રિક સિસ્ટમથી બનાવવામાં આવ્યો છે। અગાઉ જૂના ટ્રેક પર ટ્રેનની લંબાઈ માત્ર 750 મીટર હતી, જે નવા ડીએફસીસી રેલવે ટ્રેક પર માલગાડીની લંબાઈ 1.5 કિમી અને ડબલ ડેકર છે। हाँ, मैं आशुतोष रांकौत, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन अहमदाबाद। आज हमने न्यू पालनपुर से मदार खंड पे नवनिर्मित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे परीक्षण ट्रेनों का शुभारंभ किया है। आज 335 किलोमीटर ट्रैक का हमने शुभारंभ चालू उस पर परीक्षण ट्रेनें चालू करी है, जिसमें से कि 300 किलोमीटर राजस्थान में है, 35 किलोमीटर गुजरात में है। आज हम पालनपुर को रेवाड़ी से कनेक्ट करने में सफल हुए हैं। तो इससे जो गुजरात के पश्चिमी बंदरगाह है कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और पिपा पोर्ट, वो डीएफसी के थ्रू सीधे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी दादरी और रेवाड़ी से जुड़ जाएंगे। तो इसमें मालगाड़ियों के फास्ट स्पीड से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलेगी। और इसके साथ साथ न्यू पालनपुर में हमने रोल ऑन रोल ऑफ की फैसिलिटी डेवलप की है, जिसके लिए कि जो एक कंसेस्टर भी हम अपॉइंट करने जा रहे हैं। तो उससे जो मालगाड़ी के ऊपर भरे हुए ट्रकों को लोड किया जा सकेगा और ये हमारे इस एरिया के औद्योगिक एवं कृषि उत्पादों को नॉर्दर्न इंडिया में पहुंचाने में सहायक होगा। इससे जो डीएफसी से जो इंडियन रेलवे में जो गुड्स ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो 26 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे डीएफसी में 100 किलोमीटर प्रति घंटा से मालगाड़ियाँ दौड़ेंगी। तो इसलिए उससे एवरेज स्पीड हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 70 से 75 किलोमीटर की रहेगी और इससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आएगी। ગુજરાતમાં સૌપ્રથમવાર બનાસકાંઠામાં આ ડેડિકેટેડ ફ્રન્ટ કોરિડોર રેલવે ટ્રેકનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે। અત્યાર સુધી પેસેન્જર ટ્રેન અને માલગાડી બંને એક જ ટ્રેક પર દોડતા હોવાની સાથે સમય અને ખર્ચનો ખૂબ જ વ્યય થતો હતો, પરંતુ હવે માલગાડીઓ માટે અલગ જ રેલવે ટ્રેક બનાવવામાં આવતા ઝડપથી ટ્રાન્સપોર્ટેશન થશે અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનની સુવિધા વધતા સમય અને ખર્ચની પણ બચત થશે, જેની સીધી અસર આવનાર સમયમાં દેશના જીડીપીમાં પણ થશે અને દેશના આર્થિક વિકાસ પર પણ થશે। डीएफसीसी की जो रेलवे लाइन है वो यहाँ न्यू पालनपुर से शुरू हुई है, क्या है आज का क्या कारण बनता है, उससे क्या फ़ायदा होगा? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आज न्यू पालनपुर से लेकर मदार के बीच में मालगाड़ियों के परिचालन के परीक्षण के तौर पर प्रारंभ किया गया है। यह लाइन
न्यू पालनपुर से लेकर मदार तक करीब 335 किलोमीटर की लाइन है और इसमें करीब 300 किलोमीटर का सेक्शन राजस्थान में आता है और 35 किलोमीटर का गुजरात के अंदर आता है। इस मालगाड़ी के परिचालन के परीक्षण से मालगाड़ियाँ सीधी पोर्ट से, जो चाहे कांडला पोर्ट हो या मुंद्रा पोर्ट हो, वहाँ से सीधी कनेक्टिविटी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ में जुड़ जाएगी न्यू पालनपुर स्टेशन से और यहाँ से मदार होते हुए सीधी रेवाड़ी तक पहुँच सकती है। तो इस तरह से करीब 650 किलोमीटर के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ये मालगाड़ियों का परिचालन किया जा सकता है। ओके, इससे क्या फ़ायदा होगा सर? इससे फ़ायदा विशेष को देखा जाए कि जब केवल मालगाड़ी के लिए ट्रैफिक लिया जाएगा तो एक मालगाड़ियाँ एक समय के अनुसार चलेगी, नियत समय पर, जैसे पैसेंजर ट्रेन चलती है उसी तरह से एक समय की पाबंदी होगी। और ये मालगाड़ियाँ जो चल रही हैं वो ज़्यादा स्पीड के साथ चलती है। आज जो औसत स्पीड है उससे हमने देखा कि हमने कल भी यहाँ इंजन का ट्रायल किया था, उसके 100 kmph की स्पीड से हमने ट्रायल चला था। आज भी मालगाड़ी की स्पीड करीब इतनी रहेगी, जो भी औसत स्पीड है, जो प्रारंभिक तौर पे भी कम से कम 50 से ऊपर ही रहेगी। तो मालगाड़ियों की तीव्र गति के साथ में चलेगी, ज़्यादा लोडिंग लेकर चलेगी और ज़्यादा लंबी चलेगी। तो इससे कम समय में ज़्यादा माल को स्थानांतरित या मतलब ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। कितना ब्रिज और कितना जंक्शन होगा इसमें? 9 क्रॉसिंग स्टेशन है, 3 जंक्शन स्टेशन है और इसमें 531 छोटे बड़े माइनर ब्रिजेस हैं। इसमें करीब 14 रोड ओवर ब्रिजेस हैं, करीब 336 से अधिक रोड अंडर ब्रिजेस हैं। जितने भी रोड अंडर ब्रिजेस हैं वो सारे 136 रोड अंडर ब्रिजेस हैं। तो इन सारे, चाहे 136 रोड अंडर ब्रिजेस हो, चाहे ROB हो, उनके माध्यम से हम लेवल क्रॉसिंग गेट को बंद कर रहे हैं। अधिकांश वर्क इसमें हो चुका है और हमारा उद्देश्य है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर जो भी लाइन चाहती है उसके ऊपर कोई भी संपर्क फाटक नहीं रहेगा। और गुजरात सरकार का भी एक प्रयोजन है कि फाटक मुक्त गुजरात, उसमें पैसेंजर की, पब्लिक की सुरक्षा भी रहेगी और गाड़ियों की सुरक्षा भी रहेगी। भरत सिंह राजपूत, ABC न्यूज़ गुजरात, बनासकांठा।